ہم اس چیپٹر میں ڈفرینٹ ٹائپس آف ویکٹر کی بات کر رہے تھے، تو آج ہم نے ایک اور ویکٹر کو ڈیفائن کرنا ہے اور ایکسپلین کرنا ہے، اور وہ ہے ریزلٹنٹ ویکٹر، یا ہم اس کو سم ویکٹر بھی کہہ دیتے ہیں۔ تو اس کی ڈیفینیشن دیکھیے یہاں پر لکھی ہوئی ہے۔ جب ہم دو یا دو سے زیادہ سملر ویکٹرز یعنی ایک جیسے ویکٹرز کو ہم ایڈ کریں تو ہمیں ایک سنگل ویکٹر حاصل ہوتا ہے، اور اس سنگل ویکٹر کا ایفیکٹ ان تمام ویکٹرز کے مجموعی ایفیکٹ کے برابر ہوگا جن کو ہم نے جمع کرنا ہے۔ اب یہ جو سنگل ویکٹر ہمیں حاصل ہوگا اس کو ہم کہہ دیں گے ریزلٹنٹ ویکٹر یا سم ویکٹرز۔ یاد رکھنے والی بات یہ ہے کہ ہم دو یا دو سے زیادہ ایسے ویکٹرز کو ایڈ کر سکتے ہیں جو سملر ویکٹرز ہوں۔ فار ایگزامپل ہمارے پاس ایک فورس ویکٹر ہے، آپ کہہ لیجیے 10 نیوٹن ہے، دوسرا 50 نیوٹن ہے، وہ بھی فورس ہے، ہم ان کو جمع کر سکتے ہیں، لیکن دو ڈفرینٹ ٹائپس آف ویکٹرز کو ہم ایڈ نہیں کر سکتے۔ فار ایگزامپل ہمارے پاس ایک ویلوسٹی ویکٹر ہے اور ایک مومنٹم ویکٹر ہے، حالانکہ دونوں کوانٹیٹیز ویکٹر ہیں، لیکن ہم ان کو ایڈ نہیں کر سکتے۔ ملٹیپلائی تو کر سکتے ہیں لیکن ہم ان کو ایڈ نہیں کر سکتے۔ تو ایڈ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ دو یا دو سے زیادہ ویکٹرز ہوں جو سملر ہوں۔ جیسے ویلوسٹی ہے تو اس میں ویلوسٹی ویکٹر ایڈ ہوگا، مومنٹم ہے اس میں مومنٹم ویکٹر ایڈ ہوگا، فورس ہے تو اس میں فورس ویکٹر ایڈ ہوگا۔ تو ریزلٹنٹ ویکٹر کو اگر ہم ڈیفائن کرنا چاہیں، جیسے یہاں پر ہم نے لکھا ہوا ہے ریزلٹنٹ ویکٹر، جیسے میں نے اس کا نام بتایا، ہم اس کو سم ویکٹر بھی کہہ دیتے ہیں۔ دا ریزلٹنٹ آف اے نمبر آف سملر ویکٹرز از اے سنگل ویکٹر which has the same effect as all the original vectors taken together۔ مطلب یہ کہ تمام اوریجنل ویکٹرز جن کو ہم نے جمع کرنا ہے، ان سب کا جو مجموعی اثر ہوگا، ان سب کا ایفیکٹ جو ہوگا اس اکیلے ویکٹر کے ایفیکٹ کے برابر ہوگا۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان تمام ویکٹر کی جو میگنیچیوڈ ہے، ٹوٹل میگنیچیوڈ سب کا مجموعہ اس اکیلے ویکٹر کی میگنیچیوڈ کے برابر ہوگا، ایسا نہیں ہے، بلکہ ان تمام ویکٹرز کا جو ایفیکٹ ہوگا وہ اس اکیلے ویکٹر کے ایفیکٹ کے برابر ہوگا۔ اب یہ ہے کہ ویکٹرز کو جمع کرنے کے لیے ہمارے پاس دو طریقے ہیں۔ ایک ہے جس کو ہم کہتے ہیں گرافیکل میتھڈ، اور دوسرا ہے جس میں ہم ریکٹینگولر کمپوننٹ استعمال کرتے ہیں۔ تو آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں ایڈیشن آف ویکٹر بائی گرافیکل میتھڈ۔ اب اس ایڈیشن آف ویکٹر میں جو گرافیکل میتھڈ ہے، ہم ایک رول استعمال کرتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں ہیڈ ٹو ٹیل رول، اور اس لیے ہم اس کو ایڈیشن آف ویکٹر بائی ہیڈ ٹو ٹیل رول بھی کہہ دیتے ہیں۔ اب اس طریقے میں ہم کیا کریں گے، سب سے پہلے تمام ویکٹرز اے بی سی ڈی وغیرہ جن کو بھی ہم نے جمع کرنا ہے ان سب کی ریپرزینٹیو لائن ڈرا کریں گے، اور وہ ریپرزینٹیو لائن ڈرا کرنے کے لیے جو ہم نے پہلے شروع میں ڈسکس کر لیا ہوا ہے طریقہ کہ ہر ویکٹر کی ریپرزینٹ کرنے کے لیے ایک اسٹریٹ لائن ہم ڈرا کرتے ہیں، ایک اسکیل کے مطابق ہم لیتے ہیں، اور اس کی ایک پراپر لینتھ ہوگی جو اس ویکٹر کی میگنیچیوڈ کو ظاہر کرتی ہے، اور اس کی ڈائریکشن کا بھی ہم دھیان رکھتے ہیں۔ تو تمام ویکٹر اے بی سی جن کو ہم جمع کرنا ہے ان سب کو ہم پہلے ان کی ریپرزینٹیو لائن ڈرا کریں گے، اس کے بعد ہم ان تمام لائن کو ری ڈرا کریں گے، دوبارہ ڈرا کریں گے۔ اس طرح سے ڈرا کریں گے کہ جہاں پر پہلے ویکٹر کا ہیڈ ختم ہوتا ہے وہاں سے دوسرے ویکٹر کی ٹیل شروع ہو جائے گی، جہاں پر دوسرے ویکٹر کا ہیڈ ختم ہوگا وہاں سے تیسرے ویکٹر کی ٹیل شروع ہو جائے گی، اور اس طرح تمام ویکٹرز جن کو ہم نے جمع کرنے ہیں ان کو ہم ملاتے جائیں گے۔ اور پھر آخری اور تیسرا سٹیپ یہ ہوگا کہ پہلے ویکٹر کی ٹیل آخری ویکٹر کے ہیڈ سے ہم ملا دیں گے۔ اس طرح سے جو اسٹریٹ لائن ہمیں حاصل ہوگی وہ ریزلٹنٹ ویکٹر ہوگا۔ اب اس اسٹریٹ لائن کی جو لینتھ ہوگی ایک مناسب اسکیل کے مطابق جو ہم نے لی ہوئی ہے تمام ویکٹرز کے لیے، اس ریزلٹنٹ کے لیے اس کی جو لائن کی لینتھ ہوگی وہ اس ویکٹر کے میگنیچیوڈ کو ظاہر کرے گی، اور اس کی ڈائریکشن ہوگی پہلے ویکٹر کی ٹیل سے شروع ہو کر آخری ویکٹر کے ہیڈ کی طرف۔ تو یہ چیز یہاں پر ہم نے بورڈ پر بھی ایکسپلین کر دی۔ ہیڈ ٹو ٹیل رول، یا جس کو ہم گرافیکل میتھڈ بھی کہتے ہیں۔ دس میتھڈ کنسسٹ آف دی فالوئنگ اسٹیپس۔ نمبر 1، ڈرا دی ریپرزینٹیو لائنس آف آل دی ویکٹرز ٹو بی ایڈڈ، یعنی تمام ویکٹر جن کو ہم نے جمع کرنا ہے، جتنے بھی ویکٹر ہیں 2 3 4، ان سب کی ریپرزینٹیو لائنس ہم نے ڈرا کرنی ہے۔ اس کے بعد ہم ری ڈرا کریں گے ان تمام ویکٹرز کو such that the head of the first vector coincides with the tail of the second vector۔ coincide میں مل جانا، یعنی جہاں پر پہلے ویکٹر کا جا کر ہیڈ ختم ہوا وہاں سے دوسرے ویکٹر کی ٹیل شروع ہوگی، دونوں مل گئی آپس میں۔ the head of the second vector coincides with the tail of the third vector and so on۔ اس طرح تمام ویکٹرز کو ہم نے
मिलाते जाना है, और आखिर में क्या होगा, जॉइन द टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर विद द हेड ऑफ द लास्ट वेक्टर, यानी सबसे जो पहला वेक्टर उसकी टेल और सबसे आखिरी वेक्टर का जो हेड है हम उनको मिला देंगे तो हमें एक स्ट्रेट लाइन हासिल होगी। अब ये जो स्ट्रेट लाइन हमें हासिल हुई है इसको हम कह देंगे रिजल्टेंट वेक्टर या सम वेक्टर। और द लेंथ ऑफ दिस लाइन विच वॉज ड्रॉन अकॉर्डिंग टू सूटेबल स्केल गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर। और डायरेक्शन क्या होगी उसकी, रिजल्टेंट की, फ्रॉम द टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर टू द हेड ऑफ द लास्ट वेक्टर। अब हम इसको एक एग्जाम्पल के जरिए देखते हैं। सपोज हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर ए है, ये जो ब्लैक कलर से दिखाया गया है, उसकी कोई ना कोई लेंथ है जो इसकी मैग्नीट्यूड को ज़ाहिर कर रही है, और ये इसकी डायरेक्शन है जो एरो हेड इसकी डायरेक्शन को ज़ाहिर कर रहा है। दूसरा वेक्टर बी है जो हमने ब्लू कलर से शो किया, और ये उसकी जो एक प्रॉपर लेंथ है वो एक स्केल के मुताबिक हमें मिली, ये उसकी मैग्नीट्यूड को, और हेड उसका जो उसका एरो है वो इसकी डायरेक्शन को ज़ाहिर कर रहा है। तो अब हम इन दो वेक्टर्स को जमा करना चाहते हैं, वेक्टर ए और बी को। इनको जमा करने से जो वेक्टर हासिल होगा हम उसको रिजल्टेंट वेक्टर कहेंगे। और जो पहला स्टेप था उसके मुताबिक दोनों वेक्टर की रिप्रेजेंटेटिव लाइन को हमने ड्रा कर लिया। अब जो दूसरा स्टेप था उसके मुताबिक हमें इनको रीड्रॉ करना है। तो ये वाला जो वेक्टर ए है ब्लैक कलर से, ये हमने रीड्रॉ किया, उसकी लेंथ इसकी बराबर है, इसकी डायरेक्शन वही है जो हमने यहाँ पर ली। जहाँ पर इस वेक्टर ए का हेड खत्म हुआ, यहाँ से ये वाला बी वेक्टर हमने शुरू कर दिया जो ब्लू कलर से है, तो बिल्कुल इसकी लेंथ इसके बराबर है और ये वाला वेक्टर इसका पैरेलल भी होगा। तो जहाँ पर अब दोनों वेक्टर की हमने मिला दिया इस तरह से, जहाँ पर पहले का हेड खत्म हुआ दूसरी की टेल शुरू हो गई। अब इन दोनों का हमने रिजल्टेंट लेना है। इस मकसद के लिए ये जो पहले की टेल वेक्टर है, पहले की टेल है वेक्टर की, और आखिरी का हेड है, इनको मिला दिया ये रेड कलर से। तो ये वाला जो रेड कलर से हमें हासिल होगा ये इन दोनों वेक्टर ए और बी का रिजल्टेंट होगा। तो हम इसको लिखेंगे आर इज वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो ये दोनों वेक्टर का ये रिजल्टेंट हो गया। अब ये जो हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर है इसकी लेंथ हम मेजर करेंगे, और इन दोनों वेक्टर्स को ड्रा करते वक्त हमने जो स्केल एडजस्ट किया हुआ है उसके मुताबिक इसकी मैग्नीट्यूड ले लेंगे। फर्ज करें आपने यहाँ पर एक स्केल लिया होगा इन दोनों वेक्टर को ड्रा करते वक्त, आप एज्यूम कर लेंगे 1 सेंटीमीटर फर्ज करें 5 यूनिट को ज़ाहिर करता है। अगर ये फोर्स है तो आप कह लीजिए न्यूटन है या जो भी है। अब आप एज्यूम करेंगे यहाँ पर ये आपने इसको पैमाइश किया और फर्ज करें ये जो लेंथ है आप कह लीजिए ये आप कह लीजिए 6.4 सेंटीमीटर आ गई फॉर एग्जांपल। तो अब देखिए 1 सेंटीमीटर ज़ाहिर कर रहा है 5 न्यूटन को, तो 6.4 सेंटीमीटर ये किसको ज़ाहिर करेंगे, 5 को मल्टीप्लाई कर दिए 6.4 से, तो इतने न्यूटन ये इसकी मैग्नीट्यूड आ गई। तो कहने की बात ये है कि ये जो हमें रिजल्टेंट वेक्टर हासिल हो रहा है इस लाइन की लेंथ रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड को ज़ाहिर कर रही है, और डायरेक्शन होगी पहले वेक्टर की टेल से आखिरी वेक्टर के हेड की तरफ। तो ये हमारे पास वेक्टर्स को ऐड करने का तरीका जिसको हमने ग्राफिकल मेथड कहा, या हमने इसमें एक रूल इस्तेमाल करते हैं जिसको हम हेड टू टेल रूल कह देते हैं। तो इसलिए हम इसको एडिशन ऑफ वेक्टर बाई हेड टू टेल रूल भी कह देते हैं। ये तो सिर्फ 2 वेक्टर्स के लिए था। अगर हमारे पास बहुत सारे वेक्टर्स हैं लेकिन शर्त यह है कि सिमिलर वेक्टर होने चाहिए, एक जैसे वेक्टर्स होने चाहिए। अगर हमारे पास ए बी सी डी वगैरह तमाम वेक्टर्स हैं, इन सब को भी हम इसी तरीके से जमा कर सकते हैं बाय यूजिंग हेड टू टेल रूल, और इन सब को जमा करने से जो हमें वेक्टर हासिल होगा उसको हम कह देंगे रिजल्टेंट वेक्टर या सम वेक्टर। अब इसमें एक बात जो याद रखने वाली ये है कि जब हम वेक्टर्स को जमा करते हैं ना तो इनकी तरतीब की कोई अहमियत नहीं होती। मीन्स कि आप वेक्टर ए में बी जमा करें या बी में ए वेक्टर जमा करें, दोनों सूरतों में रिजल्ट सेम ही आएगा। और ये जो प्रॉपर्टी है इसका एक ख़ास नाम है, इसको हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो अगर हम इसको एक्सप्लेन करना चाहें तो इन वेक्टर एडिशन द ऑर्डर ऑफ वेक्टर इज इमैटेरियल। मीन्स कि वेक्टर की तरतीब की कोई अहमियत नहीं है। आप ए वेक्टर में बी वेक्टर ऐड करें या बी वेक्टर में ए वेक्टर ऐड करें, दोनों बराबर होंगे। आप कह लीजिए कि ये वाला वेक्टर है ए प्लस बी, फर्क करें इसको हम सी वेक्टर कह लें, या चलें हम इसको R1 कहा हुआ है R1 वेक्टर, और इन दोनों का जो रिजल्टेंट है फर्क करें हम इसको R2 कहें। तो यहाँ पर हम ग्राफिकली जब ऐड करेंगे दोनों वेक्टर्स को तो देखेंगे दोनों का रिजल्ट सेम आता है, दोनों का रिजल्टेंट सेम आता है। तो दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो चलें देखिए वही 2 वेक्टर्स हैं, हमने दोबारा ड्रा करते हैं ए प्लस बी वेक्टर, ये वाला ए और ये बी वाला। तो पहले हमने ए वेक्टर ड्रा किया, जहाँ पर इसका हेड खत्म होता है वहाँ से बी वेक्टर हमने स्टार्ट कर दिया। अब ए प्लस बी लेना है तो पहले की टेल वेक्टर की
और आखिरी का यानी बी का हेड, और ये जो सुर्ख कलर से हमने यहाँ पर शो किया a प्लस बी, वेक्टर ए और बी को जब ऐड करेंगे तो ये हमें R1 वेक्टर हासिल होगा जो रेड कलर से दिखाया गया है। इसके बाद हम b प्लस ए करते हैं, यानी वेक्टर b में a वेक्टर जमा करते हैं। तो सेम ओरिजिन हम इस्तेमाल करते हुए पहले वेक्टर b ड्रॉ करेंगे। ये वाला वेक्टर b है, हमने यहाँ पर ड्रॉ किया, इसकी लेंथ बिल्कुल इसके बराबर है, इसकी डायरेक्शन बिल्कुल सेम है, दोनों पैरेलल हैं। अब जहाँ पर वेक्टर b का हेड खत्म होगा वहाँ से वेक्टर a की टेल शुरू कर दी। ये वाला वेक्टर a है हमारे पास, यहाँ पर हमने इसको शिफ्ट कर दिया। अब पहला वेक्टर जो b था इसकी टेल और a वेक्टर का हेड इनको मिला दिया, और ये जो ग्रीन कलर से हमने ड्रॉ किया है ये इन दोनों का रिजल्टेंट हो गया वेक्टर b और वेक्टर a का। हमने इसका नाम R2 रखा, तो R2 वेक्टर है b वेक्टर प्लस a वेक्टर। अब देखिए ये जो दोनों हैं R1 और R2 दोनों की लेंथ सेम है, और लेंथ किसको ज़ाहिर करती है? दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड को ज़ाहिर करती है। अगर R1 और R2 दोनों की लेंथ सेम है तो मीन्स के दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड सेम है और दोनों की डायरेक्शन भी सेम है। और हमने इक्वल वेक्टर को डिफाइन किया था दो या दो से ज़्यादा ऐसे वेक्टर्स जिनके मैग्नीट्यूड सेम हो, जिनकी डायरेक्शन भी सेम हो, हम कहेंगे वो इक्वल वेक्टर हैं। तो यहाँ पर ये जो R1 वेक्टर होगा और R2 वेक्टर होगा ये दोनों बराबर होंगे। अब R1 किसके बराबर है? ये हमने कहा था कि वेक्टर a प्लस b है, और वेक्टर R2 क्या है? b वेक्टर में हमने a वेक्टर जमा किया बाय यूजिंग हेड टू टेल रूल। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि दोनों वेक्टर्स को ऐड करते वक्त इनकी तरतीब कोई माने नहीं रखती। आप वेक्टर a में b प्लस ऐड करते हैं या b में ऐड करते हैं, दोनों सूरतों में रिजल्टेंट सेम आता है, और इस प्रॉपर्टी को हमने कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कह दिया। और अगर हमारे पास दो से ज़्यादा वेक्टर्स हैं, जैसे एक वेक्टर a है, एक b है, एक c है, आप इनको इस तरतीब से जमा करें a प्लस b प्लस c या b प्लस a प्लस c या b प्लस c प्लस a या a प्लस c प्लस b, किसी भी तरह से जमा करेंगे तो रिजल्टेंट हमेशा सेम ही आएगा। तो जब हम दो या दो से ज़्यादा सिमिलर वेक्टर्स को ऐड करते हैं तो उसमें वेक्टर की तरतीब की कोई अहमियत नहीं होती, और इस प्रॉपर्टी को हमने क्या कह दिया? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब हम देखते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, यानी वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट करना है, वेक्टर को तफरीक करना है। वेक्टर की जो सब्ट्रैक्शन का अमल है ये बिल्कुल वेक्टर एडिशन की तरह ही है, सिर्फ एक पॉइंट का फ़र्क है। जिस वेक्टर को हमने सब्ट्रैक्ट करना होता है हम पहले उसका नेगेटिव वेक्टर लेते हैं और उस नेगेटिव वेक्टर को पहले वेक्टर में जमा कर देते हैं बाय यूजिंग हेड टू टेल रूल, और वो हेड टू टेल रूल हमने भी डिस्कस किया। चलिए हम यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है, और ए में से हमने बी वेक्टर सब्ट्रैक्ट करना है। तो इस मकसद के लिए जो वेक्टर सब्ट्रैक्ट होना है पहले हम इसका नेगेटिव लिया, हम इसको नेगेटिव ऑफ बी लिख देंगे, और इसको नेगेटिव को पहले वेक्टर में जमा कर देंगे बाय यूजिंग हेड टू टेल रूल। यहाँ पर हमने डायग्राम बनाई हुई है। ये हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर ए है जो ब्लैक कलर से शो किया गया है, और एक वेक्टर बी है जो ब्लू कलर से शो किया गया है। हमने वेक्टर ए और वेक्टर बी इनका सब्ट्रैक्शन करना है ए माइनस बी। इस मकसद के लिए पहले हम वेक्टर बी का नेगेटिव लेंगे। तो अगर ये वेक्टर बी है जो ब्लू कलर से शो किया गया है तो ये इसका नेगेटिव वेक्टर हो गया माइनस बी। ये वेक्टर बिल्कुल इसके बराबर है, मैग्नीट्यूड इसकी सेम है, इसके पैरेलल भी है, सिर्फ डायरेक्शन इसकी रिवर्स है। अब हम a माइनस बी करने के लिए ये वेक्टर a है जो इसमें नेगेटिव ऑफ b ऐड कर देंगे। तो ये हमने पहले ये वेक्टर a ड्रा किया, बिल्कुल इसके मुताबिक हमने इसकी डायरेक्शन और इसकी मैग्नीट्यूड ली। जहाँ पर इस वेक्टर a का हेड खत्म होता है वहाँ से हमने ये जो नेगेटिव b है माइनस b इसकी टेल शुरू कर ली। तो ये हमारे पास वेक्टर माइनस b हो गया। तो जहाँ पर a का हेड खत्म हुआ वहाँ से माइनस b की टेल शुरू होगी। अब आप इन दोनों को ऐड कर देंगे बाय यूजिंग हेड टू टेल रूल। तो जहाँ पर पहला वेक्टर a की टेल है वहाँ उसको मिला देंगे हम वेक्टर माइनस बी के हेड से मिला देंगे, तो ये हमें हासिल होगा वेक्टर। तो ये वेक्टर क्या हो गया? a प्लस नेगेटिव ऑफ b या a माइनस बी। तो ये इन दोनों वेक्टर की सब्ट्रैक्शन होगी a माइनस बी। चलिए हमने इसको वेक्टर c कह लिया। अब इसमें बड़ी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर हम यहाँ पर वेक्टर की तरतीब उल्ट कर दें, यानी a माइनस बी की बजाय अगर b माइनस ए लिखें तो ये दोनों वेक्टर्स आपस में बराबर नहीं होंगे। अब इसको हम ग्राफिकली यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने दो वेक्टर्स हैं a और b। तो पहले हमने यहाँ पर a और b का a माइनस बी किया, वेक्टर a में हमने माइनस बी ऐड की है, तो ये हमारे पास आ गया हेड टू टेल रूल के मुताबिक वेक्टर c विच इज a माइनस बी। अब हम इसको अगर कर दें b माइनस ए करना चाहें तो पहले हमने क्या करना है? a वेक्टर का नेगेटिव लेना है। ये वेक्टर a है
तो ये बिल्कुल इसका नेगेटिव हो गया, ये वाला, इसकी मैग्नीट्यूड इसके बराबर है, डायरेक्शन इसके उल्टा। तो हम ये हमारे पास वेक्टर बी है जो ब्लू कलर से है, और ये वाला माइनस ए है जो रेड कलर से। तो बी माइनस ए के लिए क्या करेंगे, हम पहले वेक्टर बी ड्रॉ करेंगे, और वेक्टर बी में पहले हम वेक्टर बी और इसमें वेक्टर ए जो ए का नेगेटिव है ये ऐड कर देंगे बाई हेड टू टेल रूल। तो ये हमारे पास आ जाएगा बी माइनस ए। अब इस मकसद के लिए ये हमारे पास वेक्टर बी है और ये वेक्टर माइनस ए है। तो हमने पहले वेक्टर बी ड्रॉ किया, ये वाला, इसकी डायरेक्शन बिल्कुल इसके मुताबिक है, लेंथ भी इसके मुताबिक है। जहाँ पर इसका हेड खत्म हो रहा है यहाँ से माइनस ए, ये वाला माइनस ए है, शुरू कर दिया। अब पहला वेक्टर बी की टेल और आखिरी माइनस ए का हेड हमने मिला दिया। तो ये वाला वेक्टर जो ग्रीन कलर से है ये हमारे पास बी माइनस ए हो गया, यानी वेक्टर बी में हमने ए का नेगेटिव ऐड किया। चलिए इस वेक्टर को डी कह लीजिए। अब हम इन दोनों का अगर मवाजना करते हैं, ये हमारे पास सी वेक्टर जो ए माइनस बी को शो कर रहा है, और ये वाला डी वेक्टर जो सब्ज कलर से बी माइनस ए को शो कर रहा है। ये जो दोनों वेक्टर्स हैं अगर हम देखेंगे और से हम इनको स्केल के मुताबिक प्लॉट करें तो दोनों की लेंथ सेम होगी, और दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगे, और दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट होगी। अब दो ऐसे वेक्टर्स जिनकी मैग्नीट्यूड बराबर है और एक दूसरे का पैरेलल है, डायरेक्शन अपोजिट है, वो एक दूसरे का क्या होंगे, नेगेटिव वेक्टर। तो अगर हम इसको सी वेक्टर का है और इसको डी का है तो सी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस डी, या डी इज इक्वल टू माइनस सी। अब ये सी किसके बराबर था, ये देखिए सी वेक्टर ए माइनस बी था, और डी किसके बराबर था, ये बी माइनस ए। तो ए माइनस बी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ बी माइनस ए, मीन्स कि ए माइनस बी और बी माइनस ए बराबर नहीं है। अगर ये दोनों बराबर होते, ए माइनस बी वेक्टर और बी माइनस ए, अगर ये दोनों बराबर होते तो हम कहते ये कम्यूटेटिव है, यानी वेक्टर जो सब्ट्रैक्शन है कम्यूटेटिव होती है। लेकिन जो कि बराबर नहीं है इसलिए हम क्या कहेंगे, ये नॉन कम्यूटेटिव हो गया। तो वेक्टर की एडिशन है वो तो कम्यूटेटिव है, लेकिन वेक्टर की सब्ट्रैक्शन नॉन कम्यूटेटिव है। इसमें हमें वेक्टर जिनको सब्ट्रैक्ट करना है उनकी तरतीब का ध्यान करना पड़ेगा। तो ए माइनस बी और बी माइनस ए दोनों बराबर नहीं होंगे, बल्कि एक दूसरे की इनकी डायरेक्शन उल्ट हो जाएगी, तो इनका जो रिजल्ट है वो सेम नहीं आएगा, इसलिए यहाँ पर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती। तो ये वेक्टर सब्ट्रैक्शन नॉन कम्यूटेटिव होगी।